Okay, so we will be starting with the muscular tissues today. Firstly, I would like to brief you about four types of animal tissues that we have. You all must have already read about those tissues, but just before starting the basics of muscular tissue, I would like to brief you about the types of animal tissues that you have, because muscular tissue you study in the animals only, because you already know that plants don't have any muscles are present in the animals. So there are the four basic types of animal tissues that are, the first one is epithelial tissue, the second one is connective tissue, the third one is muscular tissue that we are going to study today, and the fourth one is nervous tissue. There are two topics that we will be discussing now. Epithelial and connective has already been done by you, so we will be discussing about the muscular tissues and nervous tissues furthermore. Where in the when you say about muscular tissues, when you talk about the muscular tissues, then what are the muscular tissues? Firstly, by the name, it's totally clear that these are the tissues that occur in the muscles of animal cells, and these tissues consists of elongated cells. कुछ इस तरह के elongated cells present होंगे, consists of elongated cells जिनको आप बोलते हैं muscle fibers. The system of muscular tissues consists of elongated cells that are known as the muscle fibers. Now, what is the role of these tissues and the muscle fibers? They play a role in the movement in our body. हमारी बॉडी में अगर मूवमेंट करानी है तो मस्कुलर टिश्यूज का रोल है. मूवमेंट इन द सेल्स, you walk, you have peristalsis. Peristalsis means when you chew the food and during the digestion, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टमक के वॉल्स में पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होते हैं, ईसोफेगस में पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन ऑफ फूड होता है. Such type of movements are caused due to muscular tissues. So basically the main purpose of the muscular tissues, or we can say the main function of the muscular tissues, is the movement. To provide movement in the body, we have the muscular tissues. What do they have in special? Muscles contain special proteins. स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं मसल्स में या फिर मस्कुलर टिश्यू में, जिनको आप बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कोज मूवमेंट. क्या बात समझ में आई आपको कि जो आपके मस्कुलर टिश्यूज हैं उनके अंदर इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट हैं जिनको आप मसल फाइबर्स बोलते हैं, और इनका रोल है आपकी बॉडी में मूवमेंट करवाना. The basic function of the muscular tissues in your body is to make the body move. The functions such as walking, peristalsis, whatever movements are taking place in your body, they all are due to the muscular tissues. And how do the movements are occurring? Because of presence of a special protein
that is known as the contractile protein that contract and relax to cause the movement. समझ में आई बात? Are the things clear? Are you getting me? Yes, ma'am. Okay, very good. Then now the muscular tissues are of three types. एनिमल टिश्यूज के चार टाइप थे जिनमें से एक टाइप मस्कुलर टिश्यूज था. अब मस्कुलर टिश्यूज को हमने थ्री डिविजन्स में डिवाइड कर दिया है. व्हाट आर द डिविजन्स? लेट्स सी. The very first division is known as striated muscles. Striated muscles or the skeletal muscles or voluntary muscles. Okay. The second one are known as the smooth muscles that are also known as involuntary muscles. And the third one, totally different from the first two, cardiac muscles. As the name suggests, these are present in heart. Cardiac word is used for the heart. Doctor who treats your heart is known as cardiologist. So cardiac muscles, these are also involuntary muscles. Now you have three types of muscles. The first one are striated, second one are smooth muscles, the third one are cardiac muscles. Talking about the striated muscles first, as the name suggests, I told you that striated muscles are also known as the skeletal or the voluntary muscles. इन्हें आप skeletal या फिर voluntary muscles के नाम से भी जानते हैं. So what are these? As the name suggests, पहली बात तो ये है कि ये वाली जो मसल्स हैं ये मोस्टली अटैच्ड रहेंगी टू बोन्स के साथ. आपकी बॉडी में जो बोन्स हैं उनसे मोस्टली अटैच रहेंगी ये मसल्स एंड दे हेल्प इन बॉडी मूवमेंट. आपकी बॉडी की बोन्स के साथ अटैच्ड हैं और मोस्टली आपको बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती हैं. इसीलिए इनको स्केलेटल मसल कहते हैं. बिकॉज आपने अगर कभी स्केलेटल सिस्टम देखा है तो दैट एंटायरली कंसिस्ट ऑफ बोन्स ऑफ योर बॉडी. सो बेसिकली these muscles, because of getting attached to the bones of your body and helping the body to move, these are also known as skeletal muscles. When we talk about voluntary, it means the movement is as per our will. हमारी विल के अकॉर्डिंग, हमारी मर्जी के हिसाब से मूवमेंट होता है. वॉलंटरी है. वॉलंटरी इन द सेंस हम चाहें तो काम करेंगे, नहीं चाहेंगे तो काम नहीं करेंगे. मैं वॉक करना चाहूंगी तो मेरी स्केलेटल मसल्स का रोल है. इट्स माई चॉइस वेदर आई वॉन्ट टू मूव माई फुट और द लेग और नॉट. मेरे को कोई चीज पकड़नी है. इट्स माई चॉइस वेदर आई वॉन्ट टू मूव माई हैंड और नॉट. सो बेसिकली इन मसल्स की मूवमेंट हमारे ऊपर डिपेंड करती है. हमारे हाथ, हमारे पांव, ये सब हमें कैसे चलाना है हमारी मर्जी है. सो द मूवमेंट्स आर वॉलंटरी. एंड स्ट्राइएटेड मसल्स बिकॉज सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं होती इनके अंदर, और मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं. एक ही नहीं, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. एंड स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं. स्ट्राइएशंस मतलब लाइनिंग काइंड ऑफ थिंग.
जैसे just like this. Striations are present. कहीं लाइट स्ट्राइएशंस हो सकते हैं, कहीं पे डार्क स्ट्राइएशंस होंगे, इस तरह की मसल्स होंगी एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. These are the nucleus and these are the striations. इन्हें आप बोलते हैं स्ट्राइएटेड या फिर स्केलेटल मसल. समझ आया? Have you got it? Yes, ma'am. Okay. Coming to the next one, we have smooth muscles. Now, what are these smooth muscles? I told you these are involuntary. इनवॉलेंटरी मसल्स हैं. इनकी मूवमेंट आपकी विल के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी. ये बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में प्रेजेंट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे आर फाउंड इन आइरिस ऑफ आई. आपकी आई का एक पार्ट होता है आइरिस, उसके अंदर प्रेजेंट होंगी. यूट्रस में प्रेजेंट हो सकती हैं. ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट हो सकती हैं. एंड सेल्स जो हैं इन मसल्स के, वो कैसे होते हैं? लॉन्ग, स्पिंडल शेप्ड एंड पोजेस अ सिंगल न्यूक्लियस. ओके, सेल्स कैसे होते हैं? लॉन्ग, स्पिंडल शेप्ड एंड पोजेस अ सिंगल न्यूक्लियस. लॉन्ग सेल्स होंगे, स्पिंडल शेप के होंगे एंड उनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. देखते हैं किस तरह से दिखेंगी. देखो, स्पिंडल की शेप की हैं. पूरे मसल फाइबर बनाने हैं ना, तो ज्यादा बनाएंगे. हर एक के अंदर बस एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, हर सेल के अंदर. स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स हैं, स्पिंडल शेप्ड हैं, लॉन्ग हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है. कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए कि आपकी आइरिस जो होती है आई की, उसके अंदर, यूट्रस के अंदर, ठीक है, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स के अंदर. ओके, एंड दीज आर द स्पिंडल शेप्ड. स्पिंडल शेप्ड का मतलब समझते हैं? एक सिलेंडर सी रोड होती है ना, जो सिलेंडर राउंड रोड होती है, उसको स्पिंडल बोलते हैं. ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मशीन्स होती हैं, उन मशीन्स पे आप थ्रेड लगाते हो, थ्रेड लगा के चलाते हो, तो क्या होता है, राउंड सी स्टिक होती है टेपर्ड एंड्स की, जिसमें आप मशीन का धागा लगा के उसको ट्विस्ट करते रहते हो, वो होता है स्पिंडल. तो उस स्पिंडल शेप की मसल्स होती हैं स्मूथ मसल्स. नाउ ये यहाँ पे क्या था? ये जो आपने बनाए थे सिंगल न्यूक्लियस, दिस इज smooth muscle. Now the next you have are cardiac muscles that are present in your heart. Heart में present होती हैं. क्या काम है इनका? Help in
rhythmic contraction and relaxation of heart. हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में they play a very important role, and cells are cylindrical, branched and uninucleate. सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ब्रांच सेल्स होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे. कुछ इस तरह के मसल फाइबर दिखेंगे. ऐसे पूरे एरिया में आप बनाएंगे. ये है न्यूक्लियस और यहाँ पे आपके पूरे सारे एरिया में striations present है. These are cardiac muscles. क्लियर है? हाँ जी बताएं. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. बाकी सब कहाँ है? आवाज नहीं आ रही है. भवनीत, Yes, ma'am. क्लियर? आर द थिंग्स क्लियर टू यू? Yes, ma'am. It's clear. Okay. So this is done. In the muscular tissues, you have to do 3 types of tissues only. The first one is skeletal, the second one is smooth, third one is cardiac muscles. I have told you the functions. I have told you which type of cells are present. When you have to write it in 2 mark, 3 mark or 5 marks, this is how you are going to write. Okay. But now I will be giving you few points in a in a tabular manner how to differentiate. Sometimes आपसे पूछ लिया जाता है कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं. हम उनकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि किस किस चीज में ये वाले टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. लेट्स सी. You have the first one is skeletal tissues. When you talk about the skeletal tissues, skeletal, smooth and कार्डियक. कार्डियक टिश्यू में तो कोई और डिवीजन हो ही नहीं सकती, क्योंकि कार्डियक मसल्स तो कार्डियक टिश्यूज तो कहाँ पे हैं? कार्डियक मसल्स में है, जो कि हार्ट में प्रेजेंट है. जो स्मूथ टिश्यूज हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं? आइरिस ऑफ आई में प्रेजेंट है, आपके यूट्रस में प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट है, आपके स्टमक की वॉल्स में प्रेजेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराते हैं. Okay, such kind of portions of your body contain the smooth muscles. And when we talk about the skeletal muscles, then you have क्या लगता है आपको स्केलेटल मसल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगी? I told you about the body movement. So where Bones. bones से तो attached हैं, bones से तो these are already attached. Basically, all the muscles that are
attached to your skeleton or the bones, they all are skeletal muscles. आपके पाँव की, आपके हाथ की, वो सारी मसल्स चूज कर लो जिनको आप अपनी मर्जी से हिला डुला सकते हो, आप अपनी मर्जी से मूवमेंट करा सकते हो. They all are skeletal muscles. And now the left one left is smooth muscles, जिसके अंदर इतने सारे पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिए हैं. या हम ये कह सकते हैं जो आपके लीवर है, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, जितने भी आपके होलो विसरल ऑर्गन्स हैं, इन सब के अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है. ओके, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. I'll be covering the next topic also. We have time that is left with us. So just wait for a minute. What do we have? We have the muscular tissues now. Let's study what are the muscular tissues. Sorry, muscular we are already done with. We have to study the nervous tissue. What is nervous tissue? आपकी नर्व्स जो होती हैं, यानी कि ब्रेन सेल्स, यहाँ होते हैं नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू इज प्रेजेंट इन ब्रेन. ओके, अगर मैं कंप्लीटली नर्वस टिश्यू की बात करूं, देन नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ योर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स. आपने कभी सुना होगा, समटाइम्स, फॉर गॉड से किसी के साथ नहीं हो, बट यू समटाइम्स हियर अबाउट द ट्रेजेडीज कि कुछ एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से स्पाइनल कोड में ब्रेकेज हो गया, स्पाइनल कोड ने काम करना बंद कर दिया, द पर्सन इज बेड रिडन, समथिंग लाइक दैट. ऐसी कोई सिचुएशन हो गई, उस टाइम पे उस पर्सन के ब्रेन पे भी इफेक्ट आने लगता है. ठीक है, तो have you heard about such incidents? I would say, have you heard about such accidents? सुना है आपने कि स्पाइनल कोड पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है? Yes, ma'am. हाँ, तो वो क्या होता है कि ब्रेन की एक्टिविटी भी ऐसे में कम हो जाती है या प्रॉब्लमैटिक हो जाती है. दैट इज बिकॉज नर्वस टिश्यू में प्रॉब्लम आ जाता है. नर्वस टिश्यू के तीनों पार्ट होते हैं. दीज ऑल आर कनेक्टेड, ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स. दे ऑल टुगेदर विल वर्क टू फॉर्म नर्वस टिश्यू. सो जो आपके नर्वस टिश्यू के सेल्स हैं, ये बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं. हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स आर प्रेजेंट फॉर बीइंग स्टिम्युलेटेड, ताकि उनको स्टिमुलेशन मिले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, एंड देन ट्रांसमिट करेंगे स्टिमुलेशन को, जो उनको स्टिमुलाई मिला उसको ट्रांसमिट करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कहने का मतलब क्या है, आपके सामने गरम चाय रखी है, मान लो कोई गरम चाय लेके आया आपके लिए, ठीक है, आप बैठे हैं, गरम चाय गलती से आपके ऊपर गिर गई उस दूसरे पर्सन से, सडनली आप रिएक्ट करेंगे. You will stand up, you will go to wash your clothes, you will go to wash your hands so that you can have a cold therapy कि जल ना जाए. ये सब कहाँ से हो रहा है? The tissue that is playing an important role is the nervous tissue. You are doing the reflex actions to the movement that is occurring upon you. You are doing the reflex actions to the actions that are occurring upon you. तो ये जो स्टिमुलेशन करने का काम है, स्टिमुलेशन करना और फिर उस स्टिमुलाई को ट्रांसमिट करना फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर वन,
These are done by the highly specialized cells that are present in the nervous tissue. और ये जो cells हैं, जिन highly specialized cells की हम बात कर रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं neurons. Neurons are present in the brain that are the highly specialized tissues, or sorry, highly specialized cells that work to stimulate and transmit the signals. अब आपको नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन का डायग्राम बनाना आ जाता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर सब्जेक्टिव पेपर. न्यूरॉन का डायग्राम, न्यूरॉन ये जो सेल जिसकी हाईली स्पेशलाइज सेल की बात हो रही है, इसका डायग्राम. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ इट. आई विल टेल यू कि क्या क्या पोर्शंस प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन्स में. This is the nucleus, and these branched portions are known as the dendrites. That is totally consistent of the cell body. Then you have the axons and the nerve ending. This is your neuron or the nerve tissue.